میں یقیناً حق ادا نہیں کروں گا اگر میں خصوصیت سے شکریہ ادا نہ کروں مولانا حسن رضا واقر صاحب کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ شفقت فرمائی ہے ہمیں. اور میں انہی سے ملتمس ہوں کہ جناب ہمیں تھوڑا سا درس دیجیے کہ ہم روحانی طور پہ اپنے وقت کے امام کے کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں, وہ کون سی دعائیں ہیں, وہ کون سی زیارات. تو آپ کی بھرپور صلوات میں میں دعوت دوں گا جناب مولانا حسن رضا واقر صاحب اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مجاہد حیدر صاحب اور جتنے ان کے رفقا ہیں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا خاص نظری کرم ہے, شفقت ہے کہ وہ اس مادیت کے دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روحانیت کے غذا تقسیم کر رہی ہیں. اور یقیناً ہم سب کو بھی یہیں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارا شعبہ کوئی ہو, ہم جتنا بھی دنیا میں مصروف ہوں, ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے, کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سے. اس لیے کہ یہ امام وہ ہیں تو عدیلہ کے جملے اللہ بیوبنہ روز قربرا, جن کے صدقے میں کائنات کو رزق ملا. باب وجود ہی ثبتت الارض والسماء, امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے, آسمان بھی باقی ہے. کتب سماوی میں بھی 12 اماموں کا تذکرہ ہے. برادران اہل تسنن کی کتابوں میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا 12 امام ہوں گے, 12 خلفاء ہوں گے. یعنی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یعنی امام 12 ہے, خلفاء 12 ہیں. اور ان میں یہ بھی سیاست کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس دن کو اتنا طولانی کر دیا جائے گا, جب تک امامت نہیں آئے گی تب تک قیامت بھی نہیں آئے گی. اب ایک سوال ہے اپنے برادران اسلام سے, ہم کہتے ہیں یعنی آپ بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں, ہم بھی منتظر ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کوئی اجماع کر کے, کوئی شورا بنا کے کسی کو امام مہدی میں انتخاب کریں, کہ آپ اجماع کر لیں کہ یہ شخص امام مہدی ہے, یا شورا جو آپ کے نزدیک اہل الحل والعقد ہیں کہ وہ کسی ایک کو امام مہدی متعین کر دیں. اب وہ کہیں گے نہیں, امام مہدی بنانے کا اختیار مجھے یا آپ کو نہیں ہے, وہ اللہ بنائے گا. جب 12 خود نہیں بنا سکتے تو پہلا خود کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہ 12 خود نہیں بنا سکتے تو پہلا بھی آپ خود منتخب نہیں کر سکتے. یہ 12 سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اب ہم روحانی طور پر امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے روایات میں ہے کہ زمانہ غیبت میں مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا, اور جو امام پردہ غیبت میں بھی گئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے امامت کی معرفت حاصل نہیں کی, اس لیے امام پردہ غیبت میں گئے. یہ جملہ میرا نہیں, ایت اللہ شہید باقر الصدر اعلی اللہ مقامہ کا ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو ایک چراغ دیں, اس چراغ کی روشنی میں صفت ہے, مگر وہ بندہ اس چراغ کی قدر نہ کرے, اسے ضائع کرے, آپ اسے دوسرا چراغ دیں. اچھا وہ ٹوٹ گیا, ضائع ہو گیا, اس چراغ کی روشنی میں سفر کرو. وہ بندہ دوسرا چراغ ضائع کر دیتا ہے, آپ اسے تیسرا چراغ دو, اس کی روشنی میں سفر کرو. وہ تیسرا ضائع کر دیتا ہے. اب اللہ نے وہ کہتے ہیں پے در پے ان کی ہدایت کے لیے 11 چراغ دیے, انہوں نے قدر نہیں کی, اس لیے اللہ نے 12ویں کو پردہ غیبت میں کر دیا ہے تاکہ انہیں امامت کی قدر ہو سکے. کہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے امام پردہ غیبت میں ہے. اب ہم کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں؟ اب اس حوالے سے آئمہ نے ہمیں بتایا کیسے ایمان محفوظ رکھنا ہے. یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب پردہ غیبت میں امام ہوں گے, غیبت طولانی ہو جائے گی, لوگوں کا ایمان
पे इस्तिकामत और साबित कदमी मुश्किल हो जाएगी, तो इमाम ने फरमाया ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सका फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी नफ्सका लम अअरिफ रसूलक, अल्लाहुम्मा अरिफनी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी रसूलका लम अअरिफ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो भी ज़माने ग़ैबत में इस दुआ की तिलावत फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़रूर जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे मारिफत इमाम नसीब फरमाएंगे। और उसके लिए देखिए जब हम चाहते हैं कि इमाम का क़ुर्ब हासिल करें, उसमें हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम सबको जो भी इमाम अलैहिस्सलाम का मामूम है, अब देखिए आप और मैं इमाम ज़माना की बैत करते हैं, दुआ अहद इस बात की दलील है कि मौला मैं आज की सुबह आपकी जो बैत कर रहा हूँ ये सारी ज़िंदगी अपनी बैत पे कायम रहूँगा, कभी अपनी बैत से पीछे नहीं हटूँगा। जब हमने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ अहद के ज़रिए बैत की हुई है, तो अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बैत में उनका क़ुर्ब कैसे हासिल करें? 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले हमें अपने रिज़्क़ की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि जो मैं खुद रिज़्क़ खा रहा हूँ, अपने बच्चों को रिज़्क़ खिला रहा हूँ, क्या मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूँ, किसी दूसरे का हक तो नहीं माना। अगर मेरा रिज़्क़ पाक है, खुद भी हलाल खा रहा हूँ, औलाद को भी हलाल खिला रहा हूँ, मुझे सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने एक ज़ीना तय करी, रूहानियत की जितनी भी मनाजिल आप तय करना चाहते हैं उसके लिए पहली शर्त रिज़्क़ हलाल होती है। आप देखेंगे कितने लोग जिन्होंने औलाद को रिज़्क़ हराम खिलाए उनकी औलादों में ज़ाहिर। अगर हमने रूहानियत के मदारिज तय करने हैं तो पहला हदफ हमारा ये है, हमारा लुक़्मा हलाल होना चाहिए जो हमारे पेट में जाए। दूसरा जो अहम चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब हासिल करें तो हमारी नज़र और हमारी शर्म का पाक, अपनी नज़र का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और तीसरी जो अहम चीज़ है, अगर इमाम ज़माना का तक़र्रुब चाहते हैं वो हर वाजिब पे अमल किया जाए, जो वाजिबात हैं उन पे अमल करो, जो मुहर्रमात से उनसे इज्तिनाब करो। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे कहूँगा बस औकात हम मुस्तहबात की तरफ जाते हैं, जाना चाहिए, करना चाहिए, मगर पहला मरहला अगर वाजिब छोड़ के मुस्तहब की तरफ जा रहे हो तो वो आपसे कहीं न कहीं भूल हुई है। वाजिब का मतलब ये है कि जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, मुस्तहब का मतलब ये अगर न भी करते तो आपको गुनाह नहीं था, वाजिब का बाज़ मरसूखा। इसी तरह मुहर्रमात है, मुहर्रमात से इज्तिनाब करना चाहिए, बजाय कि हम मकरूहात पर तवज्जो करें, नहीं, मकरूहात से पहले मुहर्रमात हैं। जब हम ये मरहला तय कर लें, वाजिबात पे अमल कर लें, मुहर्रमात से इज्तिनाब कर रहे हैं, फिर अगला मरहला आता है कि मुस्तहबात की भी इंसान पाबंदी करे और उसके बाद मकरूहात से इज्तिनाब करे। आखिर में 2 जुमले, हम कौन से अमल करें, यानी ये तो हमारी अमली जिम्मेदारी हो गई कि रिज़्क़ भी पाक होना चाहिए। इसी तरह नज़र की हिफाजत करें, इफ़्फ़त व पाक दामनी की हिफाजत करें, अपने वाजिबात अदा करें, लेकिन कुछ रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूँ। बस औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं जो रूहानी तौर पे इतने कमज़ोर होते हैं। जैसे फ़ोन आया एक मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि मैं कुरान देख भी नहीं सकता। जैसे ही मसला मैं कुरान उठाता हूँ पढ़ने के लिए इरादा भी किया, जैसे अंदर से कोई ऐसा वसवसा है कि नहीं कुरान नहीं पढ़, कहीं चला गया, वफात हुई तो कुरान की तिलावत करो, कभी अंदर से कोई जैसी आवाज़ आई कुरान की तिलावत करो, यानी रूहानियत खत्म हो चुकी। अब वो आलिम दीन उसे कहें कि नहीं तुम रोज़ाना आओ 50 आयतें पढ़े, उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, हर रोज़ कुरान मजीद की बेशक तिलावत न करो, मगर सिर्फ हर रोज़ एक दफ़ा जाओ, कुरान मजीद उठाओ, उसे बोसा दो, सीने से लगाओ, फिर जहाँ से उठाए वहाँ लग जाए। नहीं,
وہ काफी दिन ये अमल करता रहा। कहता है वो सिर्फ कुरान उठा के बोसा दे के सीने से लगाने की वजह से कुछ न कुछ अल्लाह ने रूहानियत डाल दी। एक दिन खुद मेरे दिल में ये कशिश पैदा आई, ये हसरत हुई, नहीं आज मैंने कुरान की तिलावत करनी है। कहते अब जब मैंने कुरान खोल के तिलावत करना शुरू की तो मेरा बंद करने को दिल नहीं था। लिहाजा कुछ ना कुछ इस तरह ताल्लुक रिश्ता हमें रूहानियत से जोड़ना चाहिए। उसके लिए क्या है, तो इमाम ज़माना की तिलावत क्या कीजिए, ये खुद इमाम से रिवायत है। तो अहद कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें। हम कहते हैं कि मैं इमाम ज़माना की बैत करता हूँ, तो बैत के लिए दुआए अहद तालीम दी गई है। दुआए अहद की कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा तिलावत करें। और फिर देखिए हमारे हाथी इमाम पेशवा कितने हम पर शफीक हैं। अगर कोई बंदा ग़ैबत इमाम में 40 दिन मुसलसल दुआए अहद की तिलावत करता है, अगर इमाम के ज़ुहूर से पहले वो दुनिया से रुखसत भी हो गया है, जैसे अबाजादी से हमने अकीदा रजाअत की तरफ इशारा फरमाया, इमाम फरमाते हैं अगर वो इमाम के ज़ुहूर से पहले मर गया, इंतकाल कर गया, तो उसे कब्र से उठाया जाएगा और इमाम के नासरों में शामिल किया जाएगा। यानी इससे दुआ के असरात हमारी तरफ लौटते। दूसरा, दुआ नुदवा की तिलावत फरमाया गई। अब देखिए जितनी ईदें हैं उसमें दुआ नुदवा पढ़ना मुस्तहब है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, रोज़े जुमा, ताकीद है दुआ नुदवा। यानी ये रिवायात भी बताती हैं कि अपनी खुशियों में भी इमाम ज़माना को फरामोश नहीं करना। और तीसरी जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, और अल्लामा सैयद हसन अफ्ताही जिन्होंने 2 जिल्दों में किताब लिखी मुलाकात पा इमाम ज़माना, और ये वो आलिम है कि जिन्होंने खुद इमाम ज़माना से मुलाकात की है। उन्होंने एक जिल्द में वो वाक़यात लिखे जिन लोगों ने इमाम ज़माना से मुलाकात की तो इमाम ने उन्हें क्या बाज़ नसीहत की। दूसरी जिल्द में उन्होंने वो अमाल लिखे इमाम से कैसे मिल सकते हैं। वो उसमें लिखते हैं कि अगर कोई बंदा ज़ियारत आले यासीन पढ़े तो मैं नहीं मानता उसे इमाम ज़माना की ज़ियारत। यानी जिसने खुद इमाम ज़माना का दीदार किया, इमाम की ज़ियारत की है, वो आलिम रब्बानी कह रहे हैं अगर आप ज़ियारत आले यासीन पढ़ें तो ये मुमकिन नहीं कि आपको इमाम का दीदार ना हो। हमारी दुआ है कि मालिक हुज्जत दौरा बक़ियतुल्लाह को इसमें सबूत दे और हमें इमाम अलैहिस्सलाम के क़दमों में उनके अंसार और आवाम में शामिल फरमाए। अपने अपने तौर कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताजीब के लिए और इमाम ज़माना की नुसरत में शामिल होने के लिए नवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु